ଗତକାଲି ପାଠ କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ରୁବ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସର ଯେମିତିକି ମୟୂରମାନେ ବର୍ଷାରେ ବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭେଦ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ନିହତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ପିତାମହ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନୁରୁବାଚ ଅଳଙ୍ଗସାତିରୋଷେଣ ତମୋଦ୍ୱାରେଣ ପାପମନା ଯେନ ପୁଣ୍ୟଜନାନ ଏତାନ୍ ଅବଧିସ୍ତ୍ୱଂ ଅନାଗସଃ। ମନୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ ଧ୍ରୁବ, ଦୟାକରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କର। କ୍ରୋଧ ହେବାର ତୁମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହିଁକି କାରଣ ନାହିଁ ଆଗକୁ କହିବେ, ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କ୍ରୋଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହେଁ। କେତେଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଥିଲି। ନାଇଁ, ଏ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛେ, କ୍ରୋଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଅଟେ। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ଆୟୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ବିଜ୍ଞାନ ବି କହୁଛି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେହେତୁ ସେ ମାୟାର ଜଗତ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବର୍ଷଣ କରିବା ଇଏ ଏକ ଭକ୍ତର ଗୁଣ ଅଟେ, ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ ଅଟେ। ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ଦ୍ୱେଷ କରୁନାହ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ଈର୍ଷା କରୁନାହ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ପତନ କରିଦେଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେଇଥାଏ। କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଇଏ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଇଏ ନର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇଏ ନର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ତେଣୁ ହେ ବତ୍ସ ଧ୍ରୁବ, ତୁମେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ କରିବା, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ବାସ୍ତବିକ ସୀମା ତାକୁ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ରୋଧ କରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧର ବାସ୍ତବିକତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୋଧର ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଠିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଇଏ କୌଣସି ମତରେ ତୁମ ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ନାସ୍ମତ୍ କୁଳୋଚିତଂ तात କର୍ମେତତ୍ ସତ୍ ବିଗର୍ହିତଂ ବଦ୍ଧୋ ଯତ୍ ଉପଦେବାନାଂ ଅରବ୍ଧ ଅସ୍ତି କୃତି ନସାମ୍। ହେ ଧ୍ରୁବ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ନିରପରାଧ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛ, ବଦ୍ଧ କରୁଛ, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛ, ଇଏ ସାଧୁଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ଇଏ ସାଧୁଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ନୁହେଁ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ରୋଧ କରିବା ବି ଉଚିତ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବି ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଉତ୍ତମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିପରୀତ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଅନୁଚିତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମହାଭାରତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପରି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱାଭାବିକ। 18 ଦିନ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଛଳନା ବି ଥିଲା। ନିଜର ପୁତ୍ର ଛଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେବେ ବି ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ନା ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଥିଲେ, ସାରଥି ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାରଥି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପାପ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ହେ ଧ୍ରୁବ, ତୁମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଇଏ ସାଧୁ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ଇଏ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ଯେଉଁ କୂଳ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ତାକୁ ବି ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଇଏ କୁଳୋଚିତ ଧର୍ମ ବି ନୁହେଁ। କୁଳୋଚିତ ଧର୍ମ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଇଏ ତ ଆମର କୁଳୋଚିତ ଧର୍ମ ଇଏ ନୁହେଁ। ତ ଆମର ଧର୍ମ, ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍
मनु महाराज कहते हे ध्रुव धर्म अधर्मर पार्थक्यता व्यवहार ये आमर कुलर परंपरा रही, ये आमर कुलर परंपरा रही। तेणु तुम्हें कुलर मर्यादा रखा दरकार। तुम्हें ए वंशर राजा तो ए वंशर मर्यादा ए राज्यर मर्यादा धर्मानुसार पालना करने उचित अटे। राष्ट्र धर्म कुल धर्म एवं जीव धर्म को तुम्हें पालन करने उचित अटे। नन्विकस्या अपराधेन प्रसंगाद बहवो हताः भातृवृद्धा भितस्तेन त्वयांग भातृवत्सल। हे भातृवत्सल ध्रुव, भातृवत्सल ध्रुव बोली एठारे संबोधन करिवार कारण हला ध्रुव महाराज उत्तमंगर मृत्युर प्रतिशोधन पाई, भातृ उत्तमंगर मृत्युर प्रतिशोधन पाई इति बड़ कांड को घटी। तो मनु एठारे भातृ प्रेम को माने ठीक बोली दर्शई सलाह करी। तुम्हें भातृ वत्सल तुम्हारा भ्राता को जड़े विनाश करी, कि भी जड़े तुम भ्राता को विनाश करी। समस्त यक्ष तो विनाश करना किंतु तुम्हें समस्त यक्ष को विनाश कर देछ। तुमने जो माने एथिरे निर्लिप्त नुहंती तुम्हें सेमानक मध्य विनाश करिछ। केवल भ्रातांकर वियोगरे भ्रातांक वियोगर शोकरे तुम्हें यक्ष मानक विनाश कर देछ। नाय मार्गो ही साधुना ऋषिकेशानुवर्तिना जदात्मान पराग गृह्य पशुवत भूत वैश्यसम। हे ध्रुव तुम्हारा भ्राता को परदृश्यमान देह को अर्थात गोटे मिनट आमे जो आघरे जहा को देखुचे से मानक जदि आमे शरीर रूप में मन करिबा तेबे ये आमर पशुतुल्य कार्य है। कहीं पशु केबे आत्मज्ञान करे नहीं, से समस्त को केवल पशु रूप ही गोटे शरीर रूप ही ग्रहण करिଥାଏ। किंतु मनुष्य पशु ठार उन्नत अटे। तार कारण है ता पाखरे ज्ञान अच्छी। ज्ञान माने कौन? से कॉलेज स्कूल रे पढ़ुची डिग्री धरुची। प्रकृत ज्ञान हला प्रकृत ज्ञान हला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानिबा। प्रकृति पुरुषन को जानिबा। क्षेत्र है शरीर एवं क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा। प्रकृति जीव एवं परमात्मा। एमान को जानिबा एवं एमानकर संपर्क को जानिबा हेउची प्रकृत ज्ञान।
आमे त्रयोदश अध्याय पढ़िले एवं सप्तम अध्याय मध्य किंचित पढ़ी तो ये हूँ वास्तव ज्ञान। एवं तुम्हें यही आत्मज्ञान को भूली जाई समस्त को शरीर ज्ञान करुच एवं से को हत्या करुच। हरे कृष्ण क्षमा कर ना ये हूँ हिंसा वृत्ति, ये हूँ हिंसा वृत्ति। देखियो किंतु ये जो हिंसा वृत्ति ये शरीर जात ही था एवं शरीर इंद्रिय द्वारा परिपूर्ण अटे। इंद्रिय द्वारा परिचालित अटे। तो कहवा को गले हिंसा वृत्ति इंद्रिय प्रवृत्ति अटे। हिंसा करिवा देश करिवा ये इंद्रिय प्रवृत्ति अटे एवं इंद्रिय शरीर प्रकृति अटे। एवं शरीर ठारो आत्मा को जे विभेद प्राप्त करिଥାଏ सी होची ज्ञानी। तो ज्ञानी शरीर प्रवृत्ति रे केवे हेले कर्म करे नाही, इंद्रिय प्रवृत्ति रे कर्म करे नाही। तुम्हें स्वयं ऋषिकेशंकर वर प्राप्त, तुम्हें स्वयं ऋषिकेशंकर भक्त ऋषिकेश के न ऋषिकेन ऋषिकेशं सेव्यते। नारद पंचरात्र वर्णना अच्छी ऋषिकेन ऋषिकेशं सेवनं भक्ति रुच्यते भक्तिर उच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेशं सेवनम इंद्रिय द्वारा इंद्रियंकर स्वामी भगवान विष्णुंकर कृष्णंकर जे सेवा करी थाए से सेवा को ही भक्ति कहा जाए। इंद्रिय द्वारा जे भगवान सेवा करी था अर्थात इस शरीरटा भगवान सेवा निमंते उच्छिष्ट अटे। ये सेवा निमंते उद्दिष्ट। तो याको तुम्हें व्यवहार करवा उचित अटे किंतु तुम्हें कौन कर द्वारा तुम्हें व्यवहार हो क्रोध करवा कौन तुम्हें इंद्रिय द्वारा व्यवहार हो किंतु वास्तव में इंद्रिय को व्यवहार करवा भगवान के निकट में समर्पण करवा ये वास्तविकता अटे। सर्वभूतात्म भावेन भूतावासं हरिं भवान आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत् परमं पदं। हे ध्रुव सर्वभूतात्म भावेन ये जो सर्वभूत सब शरीर आत्मभाव करवा उचित। आम पढ़ी षष्ठ अध्याय जो मैंने वास्तव में ज्ञानी से मैंने कौन करी न समस्त को आत्मभाव करी अर्जुन कहते ना यदि आम परमात्मा के निकट में काम करवा एवं यदि आमर आत्मार सहित आम यदि खुशी हेबा
बाहर लोक एमाने जो जगत रे सब रही एमान सहित कौन काम अच्छे एमान सहित केमती आम संपर्क रखा अरे समस्त भीतर आत्मा देख तुम भीतर जो आत्मा रही समस्त भीतर से आत्मा को देख खुशीटा से आत्मा सहित भाव कर आत्मा परमात्मा मिलन रे ही खुशी मिलता है इस शरीर खुशी इस शरीर भाव खुशी ये कष्टदायक अटे तेणु सर्वभूतात्म भावेन समस्ते होइचंती आत्मा सब शरीर होची आत्मा भूतावासं हरिं भवान एवं ये भूत बाई शरीर रे वासं हरिं भवान ये समस्त शरीर रे परमात्मा वास करती समस्ते होइचंती आत्मा एवं समस्तंक भितरे परमात्मा वास्तव में ज्ञानी ए भाव को नहीं था आराध्याप दुराराध्यं विष्णु स्तत परमं पदं आराधि आराधि आप तुम्हें मध्य भगवान को आराधना करी भगवान को आराधना करी जहां के अति दुराराध्य कष्ट तुम्हें सही प्रकार कष्ट को स्वीकार करी विष्णु स्तत परम पदम से विष्णुंकर परम पद को प्राप्त करी तुम्हें से ज्ञान को प्राप्त करी कि भूली जाऊच तेणु हे ध्रुव तुम्हें से ही भगवानंकर आराधना ताकु टिके मन पका ताकु टिके उज्जीवित करा जहां साधारण चिंतारो बाहर अटे 6 मास काल क्यों प्रकार ध्रुव गोटे गुड़े छिड़ा ही भगवान के प्रति एक निष्ठ ध्यान करते शेष पर्यंत अन्न जल को त्याग करी हमें ताको सप्तम अध्याय पढ़िले तो सही प्रकार ध्रुव आज शरीर भाव मोहित अटंती तुम्हें से विष्णु पद को प्राप्त करिच तेणु सत्वंग हरेर अनुध्यान स्तत् पुंसामपि सम्मतः कथं त्वद्यं कृतवान अनुशिक्षन सदामृतम् तेणु तुम्हें हरिंगर अनुध्यान मध्य प्राप्त तुम्हें हरि को प्रिय करिच तेणु हरि मध्य देखुचंती तुम प्रति तुम्हें मध्य हरिंगर स्नेह प्राप्त अनुध्यान प्राप्त कहवा को गले हरि मध्य तुमर अभिभावक वास्तव रे विज्ञ माने इतने सम्मत अटंती जे जो प्रकार भजन करी थाए जो प्रकार भाव रे भगवान शरणागत जाई थाए भगवान ताकु से प्रकार साहाय्य करी जेहेतु तुम्हें भगवान शरणागत थिला तुम्हें भगवान परम आराधना करी थिला
ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସାଧୁ ଅଟ, ଏ ବିଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସାଧୁଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସାଧୁ ଭାବରେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସାଧୁ ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ସହିଷ୍ଣୁତା ଅବଲମ୍ବନ କର। ହେ ଧ୍ରୁବ, ତୁମେ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅବଲମ୍ବନ କର। ସହିଷ୍ଣୁତାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ତୁମେ ଧାରଣ କର। संप्रसने भगवती पुरुषः प्राकृति गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्माणमृच्छति। वास्तव में बहुत तत्व ज्ञान मनु महाराज प्रदान करुचंती। ए ज्ञान को केवल श्रवण करवा नहीं, किसी समय धीर स्थिर भाव में बसी चिंता करवा, मनु महाराजंकर से ज्ञान को कर्णपात करवा एवं ताको जीवन रे आनिबा पई चेष्टा करवा करिदेवा यह हम कहू नहीं, किंतु जीवन रे चेष्टा करवा। कम से कम आमे अनुताप करि परिबा जे मो आज यह करिवार थिला मो करि पारि नहीं। ये भी एक दुर्भाग्यर कथा, जो मनुष्य वास्तव में से कौन करवा उचित एवं करी नहीं ताको न जानी पारिबा, ये दुर्भाग्य विषय, ये दुर्भाग्य नुहे। आम भूलटा को ही आम जानी पारे नहीं, सुधरवा केमिति? तेणु भूल जानिबा ये हूँ ज्ञान, सुधारिबा ये हूँ मन। एवं सुधारिबा सुधरी जावा ये हूँ तन। तो ये ज्ञान को आम जानिले मनटा को कण करवा स्थिर कर परिबा। तेणु हे ध्रुव, भगवान यदि प्रसन्न ही था तेबे मनुष्य ए प्राकृत गुणरू मुक्त ही थाए, ए प्राकृत गुणरू मुक्त ही थाए। आमे चतुर्दश अध्याय को यदि उद्धार करवा, ए गुणरू केमिति मुक्त हो पारिबो? ना केवल भगवान शरणागत। भगवान के शरणागत हेले कौन हुए ना मनुष्यर जो शत्रु रही कामना, से कामनाटा नष्ट हो जाए। एवं कामनार स्थान इंद्रिय, मन, बुद्धि। मुझे आई कहले अमर बुद्धि द्वारा ज्ञान, स्थिर हवा काम मन, करवा काम इंद्रिय। ये तीनोटी जिते आमर शुद्ध हो आम भीतर कामना नष्ट हो, कामना नष्ट जिते हो जाए मनीष अनुचित काम केवे भी कर पार नहीं। अनुचित काम कौन पाई करे? कामना पाई, केवल किसी प्राप्त करने कामना पाई। निजर
ରାଗ ହେଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ କାମନା। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷମା କରି ହେ ଧ୍ରୁବ ତୁମେ ଆକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସମ୍ପ୍ରସନେ ଭଗବତୀ ପୁରୁଷ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ। ତ ଭଗବତୀ ମାନେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ପଢୁଛ ନା ଭାଗବତରେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟେଷୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା। ଭଗବତୀ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ତମତା ଶ୍ଲୋକ ମାନ ଭାଗବତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଛି। ଭଗବତୀ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ତ ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରତା ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ସେ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତ ମଣିଷ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏ ପ୍ରାକୃତ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରାକୃତ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ଧ୍ରୁବ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଲିଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ଶରୀର ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଏଥିରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏ ଯୋଉ ତୁମେ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ବିୟୋଗର ଶୋକ କରୁଛ ଇଏ ଶରୀରର ଶୋକ ଅଟେ। ତୁମେ ଏ ଶରୀରର ଶୋକରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏହା ହିଁ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହେରି ଇଏ ତ ମୋର ପିତାମହ ନା, ଏ ଶରୀରଟା ହିଁ ମୋର ତ ପିତାମହ। ଏମିତି ଧଳା ଧାଡ଼ି ଥିବ, ଏମିତି ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ସେମିତି ତ ମୋତେ ସେ ଖେଳେଇଥିଲେ ବୁଲେଇଥିଲେ, କେତେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଶୁଆଇ ଦଉଥିଲେ, ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲେ। ଇଏ ତ ମୋ ଦ୍ରୋଣ ନା, ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀର। ସିଏ ତ ମୋତେ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଅର୍ଜୁନ, ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ତ ଅନୁଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ଧାରଣା କର ଏବଂ ଆତ୍ମାର କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଶରୀର କହୁଛ ନା, ଏ ଶରୀର ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ନଷ୍ଟ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏ କାଳ ଗତିରେ ଇଏ ସର୍ବଦା ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ ସଦାବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ଦୁଃଖ ଅଛି ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ଦୁଃଖକୁ ସହିବା। ତେଣୁ ଏ ଧ୍ରୁବ ତୁମେ ଏ ଶରୀରର କ୍ରୋଧରୁ, ଏ ଶରୀରର ଜାତ ଜ୍ଞାନରୁ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କର, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଭୂତେ ହି ପଞ୍ଚଭି ରାରେ ତ୍ୱଇ ଯୋଷିତ ପୁରୁଷ ଏବ ହି ତୟୋର ବ୍ୟବୟାତ ସମ୍ଭ ତ୍ରିଯୋଷିତ ପୁରୁଷୋୟୋରିତ। ବାସ୍ତବରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଇଏ ଉଭୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ହେଲା ମାୟା ଏବଂ ପୁରୁଷର ଗୁଣ ହେଲା
प्रकृति को अनुभव करवा ए अनुभव करिवार शक्ति पुरुष पाखरे अच्छी प्रकृति रे यदि ठंडा गरम धूली होउची वर्षा होउची याको अनुभव करिवार शक्ति मनुष्य अच्छी एवं प्रकृतिर काम हला सी सदाबले परिवर्तन हवा प्रकृतिर काम हला सदाबले परिवर्तन हेबा मनुष्यर काम हला अनुभव करिवा किंतु से परिवर्तन अनुभव रे यदि मनुष्य यदि निजको बांधी नहीं थाए एवं से परिवर्तन को निज भीतर समाहित कर दी थाए सेतबले से कौन भावी थाए ना मु हेली सर्वश्रेष्ठ वास्तव में प्रकृति ही गछटा को बड़ करिछि फल देछि फूल देछि किंतु मनुष्य कहे मु परा गछटा लगेइथिली पानी देइथिली बड़ करिछि फल मु ही खाइबी ए गछ जदि आउ के जदि छुईब इत्यादि इत्यादि ए घर मु करिछि ये मोर सांग मो आप बहुत किसी करिछि ये मो पे बहुत किसी करिछि ये मोर सांग ये मोर बंधु ये मोर बांधव मनुष्य प्रकृतिर नियम भितर जो अनुभव करिवार जो शक्ति सामर्थ्य अच्छी से भीतर से बांधी जाए किंतु वास्तव में ये उभय पुरुष एवं प्रकृति से ही परम ब्रह्म परमात्मा निर्देश रे कर्म करि एवं सही परमात्मा मनुष्यर हृदय भीतर रही ये समस्त कार्य को देखु था एवं सही अनुसार ताको से प्राप्त करि था से प्रकार शरीर से प्रकार गुण से प्रकार परिवेश प्राप्त करि था आम कहे मु कहीं ये प्रकार है सुंदर है मु कहीं एमती है मु कहीं सेमती सी कहीं एमती सी कहीं एमती तत्त गुण ही निजर गुण ध्रुव ये भौतिक जगतर सृष्टि पंचभूत आम गोलक चार्ट देखिले ये जो भौतिक जगत ब्रह्मांड ये पंचभूत और जो शेष लेयर ये पंचभूत एवं शरीर मध्य पंचभूत ही आम पढ़िले ना 24 तत्व जो रही से भितर पंचभूत रही तो ये पंचभूत ही शरीर रही से प्राणटा ये शरीर चली जाए ये पंचभूत को लेकर पंचभूत मिसई दिया जाए पंचभूत लीन कर दिया जाए इस शरीर पंचभूत से पुरुष हो स्त्री हो एवं वास्तव में पुरुष होचे गोटे माध्यम आम जहाँ पुरुष कहे ये हूँ गोटे माध्यम किंतु अहम बीजपद पिता वास्तव में बीजपद पिता होती भगवान कृष्ण तो तुम्हें प्रकृतिर गुण प्रकृतिर गुण जो जात करी तुम क्रोध ये गुण रे तुम्हें कौन भाषी उठुच एवं तुम्हें जो निजक श्रेष्ठ मन करुच या तो कही ना तो तत्व अर्थ कहूँ तुम्हें जो निजक श्रेष्ठ मन करुच ये पुरुषर भाव अटे प्रकृतिर भावर गुण रे तुम्हें पुरुषर जो भाव देखौच ये वास्तव में उचित नुहे तो ये समस्त संसार वास्तविकता होची एवं प्रवर्तते सर्ग स्थिति संयम एवं च गुण गति कराद्राजन माया परमात्मनः मनु कहले हे महाराज ध्रुव तुम्हें ए प्रकार भावरे
वास्तव में भगवान माया शक्ति द्वारा बांधे ही जाऊच। वास्तव में तुम्हें भगवान द्वारा सृष्ट प्रकृतिर जो तीन गुण रही सत्व रज तम से तुम्हें बांधे ही जाऊच। स्थिति एवं संहार ये भगवान माया अटे। कहार रहिबा एवं के मृत्यु प्राप्त करिबा ये भगवान कालर विचार अटे। एवं तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान समीपस्थ हुई ये जो मायार बंधन रे बांधी हेउछ, मायार चिंता रे तुम्हें युद्ध करुछ। तेणु हे ध्रुव तुम्हें जो मायार जात क्रोध रे एवं पुरुष प्रकृतिर जात जो अहम भाव रे श्रेष्ठत्व भाव रे मुक्त हो, ये उभय भाव तुम्हें मुक्त हो। निमित्त मात्रं तत्रासे निर्गुण पुरुषस्सव व्यक्ता व्यक्तम इदं विश्वं जत्र भ्रमति लोहवत्। मनुष्य हूँ केवल निमित्त। हे वत्स, हे पुत्र ध्रुव, भगवान ये भौतिक प्रकृति को सृष्टि करिसंती, किंतु से प्रकृति द्वारा आबद्ध नुहंती। माया को सृष्टि करिसंती, किंतु माया द्वारा आबद्ध नुहंती। गोटे लुहा को जदि आ गोटे लुहा पाखे रखिबा किछि भी हबो नहीं, किछि भी हबो नहीं। किंतु गोटे लुहा भितर जदि आमे चुंबकर गुण प्रवेश करिदबा से कौन करिबो आ गोटे लुहा को टानि नब। या ना तो भगवान कौन करिसंती ना भौतिक प्रकाश तो करिसंती, जेमिति लुहा चुंबक को टाणी निए, से प्रकार ए माया जगत को सृष्टि करिसंती जहा द्वारा कि मनुष्य कण करिथा ए माया रे आकर्षित हो जाता है। ए प्रकृति एवं पुरुष ये भगवान कर सृष्टि दुईटी केवल लुहा, किंतु प्रकृति पाखरे जो माया शक्ति अच्छी, जो माया शक्ति रही से कौन करुच्ची ए पुरुष को टाणी नौ। किंतु भगवान एथिरे निर्लिप्त नुहंती। भगवान सृष्टि करिसंती किंतु भगवान एथिरे निर्लिप्त नुहंती। एवं जे आत्मज्ञानी, जे आत्मा रे स्थित से यह को भल भाव रे बुझी पारि थाए। तेणु सी चुंबकर गुण रे पड़े नहीं, चुंबकर गुण रे पड़े नहीं। मायार गुण रे आकर्षित हुए नहीं, ये शरीर क्रोध रे से क्रोधित हुए नहीं। तेणु तुम्हें एथुरु क्षांत हो। सखल्विदं भगवान काल शक्त्याः गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः करोत्य कर्तेव निहंत हंता चेष्टा विभुम्न खलु दुर्विभाव्या। भगवान हेउचंती अचिंत्य, एवं भगवान
चिंतारे बा भगवानंकर अध्यक्षतारे ये प्रकृति कण करिथाए तीन गुणर सृष्टि करिथाए। ए प्रकृति विभिन्न शक्ति मध्य प्रकाशित होता है किंतु वास्तव में जना जाए कि जे भगवान ही सृष्टि करिचंदी, भगवान प्रकृति करिचंदी, भगवान ही सब किसी सृष्टि करिचंदी किंतु भगवान एथरे निर्लिप्त न थांते एवं मनुष्य ए प्रकृतिर गुण द्वारा विनाश मध्य जाइथाए। तेणु जना जाए जे भगवान समस्त को विनाश करुचंदी किंतु भगवान भी विनाश भी करते नहीं। केवल भगवानंकर सही अचिंत्य शक्ति जो शक्ति केवल कल्पना करा जाए न पारे से शक्ति बड़े जो सृष्टि ए सृष्टिर आकर्षण रे मनुष्य निजे निजे नष्ट होता है, से निजे नष्ट होता है। हे वत्स ध्रुव भगवान होचंती नित्य विद्यमान सबुठे रही सब स्थान रही स अनंत अंतकर कालन आदिरादि कृत अव्यय जनन जनेन जनयन मारयन मृत्युनांतकम। भगवान नित्य विद्यमान सदा आवड़े सबुठा रही काल रूपरे से समस्त संहार करती समय अनुसार समस्त संहार कर आमे दशम अध्याय जो क्षमा कर एकादश अध्याय आमे पाठ कले ना जे समस्त आसी भगवान मुखरे प्रवेश कर नदी जमी प्रवाह शेष आसी समुद्र रे मिसी थाए एवं आ गोटे उदाहरण भी भगवान देते जमी कि पतंगा इंद्रिय आकर्षण आसी अग्नि रे पड़ी मृत्यु बड़ करते से प्रकार ये अकाल मृत्यु ये गुणर आकर्षण रे अकाल मृत्यु होता है। ये अकाल मृत्यु मनुष्य तार गुण अनुसार प्राप्त होते हैं, तार कर्म अनुसार तार इंद्रिय आकर्षण अनुसार प्राप्त होते हैं किंतु भगवान काल रूप से समस्त को समय अनुसार संहार भी करते से अनादि भगवान आदि कई नाहती एवं से सबू अव्यय भगवान केवल नष्ट हुए ना अक्षय हुए ना क्षय हुए ना भगवान होती अक्षय कालक्रमे प्रकृति ध्वंस हुए मनुष्य ध्वंस हुए किंतु भगवान केवल ना व्यय होती ना क्षय होती से प्राणी सृष्टि करी प्राणीर मृत्यु किंतु भगवान केवल क्षय जानते ना सी सदबदा जन्म मृत्यु रहित अटंती।